and welcome. This is the third part of the chapter Challenges to Nation Building. In the second part, I explained about the problems in the partition plan and the consequences of partition. Now, in this video, I'm going to explain the first challenge that was there in front of India at the time of independence, and that challenge was the consolidation of the boundaries to ensure the unity and integrity of the country. And this was the biggest challenge. So, the map that you can see here, and that is there in your book also, it shows actually different parts into which India is stand divided when the British left India. Okay, so let's begin the video. Integration of the princely state, the first problem, the first challenge. So when the British left India, there were basically two types of territories. Okay, first was the British Indian provinces that were directly ruled by the British government, and the second were the princely states, which were ruled by the Nawabs, the Rajas, the kings, the Indian princes, and but who had accept the sovereignty of the British crown, the supremacy of the British crown. So they had already pledged their commitment to the British crown, and this is called the principle of paramountcy. So the principle of paramountcy says that the British crown is the supreme. So they were ruling their state, but they could not ignore or reject any orders of the British crown, and they had to make their forces available. They could not enter into any alliances without the permission of the British government, British crown. So they were ruling their states, but they had submitted themselves to the British supremacy. This is called the principle of paramountcy. Okay, so now if you see this map, which was there in the opening slide of the video. Now in this map, all the yellow portions that you can see were the British part of the territory, means those areas that were directly ruled by the British government. Okay, so in this you can see the United Province, okay, which is now the UP. You can see Central Province, okay, and then you can see the states of Bihar, state of Bengal. Fine. So all these yellow portions were the portions that were directly ruled by the British government, and all the blue portions that you can see here represented the princely states. Now, if I give you data, then at the time of independence, around 28% of the territory belonged to the princely state, and around 48% of the population, no, it is reverse, around 48% of the territory belonged to the princely states, and 28% of the population was living in these princely states. So the main task was to integrate these princely state. Okay. Now at the time of independence, why there was a need to integrate? Because in the partition plan, this I have reiterated more than once, that in the partition plan it was stated that these with the grant of independence, with two dominions being created, India and Pakistan, on 15th August 1947. On that date, the paramountcy on the princely states of the British crown will lapse. Okay, so on 15th August 1947, the paramountcy of the British crown over the princely states was going to lapse. Okay, now the princely states will be free, and they will be free either to join India or to join Pakistan or to remain independent. Okay, so now both the countries, the new nations that were going to be created, India and Pakistan, they started talking to these princely states, to these rulers of princely states and the Rajas, the Nawabs, to join their dominion. Okay, to join India or to Pakistan.
Fine. So there was this task which was most urgent and which was most important, because if that wouldn't have been done, if we would have let that the princely state decide on their own, there were chances that many princely states would have declared themselves as independent, और हमारा कंट्री जो आप इस वक्त देख रहे हैं मैम, वो नहीं होता, वो फ्रैगमेंटेड होता, वो पार्ट्स में होता। अगर आप इस मैप को बहुत क्लियरली क्लोजली देखें तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, जैसे हैदराबाद है जो कि बहुत ही मुश्किल से जिसका प्रॉब्लम ये सॉल्व किया गया था, मैसूर है, उसके बाद भोपाल स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये सारे अलग हो जाते, या तो अलग हो जाते इंडिया से, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लेते, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाते, और इन किसी भी सूरत में, कोई भी सूरत में इंडिया आपको वो नज़र नहीं आता जो अभी है, और जो सपना फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था फॉर द इंडिया, फॉर दैट इंडिया ऑफ देयर ड्रीम्स फॉर 200 ईयर्स, जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क था। अब इसको किस तरह से किया गया? सबसे पहले जो था वो ट्रैवनकोर, रूलर ऑफ ट्रैवनकोर डिक्लेयर देयर हिज इंडिपेंडेंस। देन कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे प्रॉब्लम थी? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, ये स्टेट्स थे जहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम थी। अभी मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी। पहले ये देखते हैं कि इसको करने के लिए किया गया, तो किया क्या गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में प्ले किया था, दैट वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड वी ओ इट टू हिम एक्चुअली। ओके, सो ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। आपको बताया था मैंने कि एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उस इंतरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और होम मिनिस्टर जो थे वो सरदार पटेल थे। होम मिनिस्टर के साथ साथ वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए थे। तो इसी इंतरिम गवर्नमेंट में एक और मिनिस्ट्री बनाई गई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए, एंड दिस वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। ओके, रियासती मामलों का विभाग। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बनाई गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी सरदार पटेल के अंडर में ही थी। मिनिस्टर इसके सरदार पटेल थे, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, वो थे वी.के. मेनन। ये नाम अभी आप लोग आगे भी सुनेंगे। तो ये वी.के. मेनन थे। तो अगर मैं कहूँ कि इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एक टीम थी 3 लोगों की जिन्होंने मिलकर ये काम किया, और वो 3 लोगों की टीम थी माउंटबेटन। माउंटबेटन आपको अभी तक पता होना चाहिए कि वो कौन थे। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो माउंटबेटन थे वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट थे? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थे कि माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे। ओके, और वो जितने भी रॉयल फैमिलीज थी, ये जितने भी प्रिंस थे, रूलर्स थे, नवाब्स थे, राजा थे, ये बनाते थे चेम्बर ऑफ प्रिंसेस। ओके, तो चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो हेड थे वो माउंटबेटन थे। तो एक तरह से उन्होंने अपना जो उनके रिलेशंस थे, ही हैड सोशल रिलेशंस, ही हैड गुड टर्म्स विद ऑल दीज रूलर्स, राजाज एंड नवाब्स, एंड ही एक्सरसाइज्ड हिज इन्फ्लुएंस ओवर देम टू कन्विंस देम जॉइन इंडिया। ओके, तो उन्होंने उस पोजीशन से उनको ये सलाह दी कि आपके लिए इंडिपेंडेंट होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, एंड और इस तरह से उनको बिल्कुल कन्विंस किया कि वो इंडिया ज्वाइन करें। तो बहुत बड़ा रोल माउंटबेटन ने भी प्ले किया था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल था वो सरदार पटेल। कोई भी तरीका, मतलब एक उनको कन्विंस करने से लेकर उनको ये समझाया गया, उनके अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग उन्होंने पैदा की कि आप भी साथ रहे हैं हमारी इस लड़ाई में ब्रिटिश के साथ, और उनको ये डर भी दिखाया कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसका असर क्या होगा,
ऐसा भी हो सकता है कि यू डिक्लेयर योर सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड योर पीपल डू नॉट लिसन टू यू, दो दे रिवोल्ट, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा। और उनको कुछ एक तरह से उनको ही मेक देम सी देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, कि उन्होंने उनकी मांगे भी मांगी, बहुत बहुत सी डिमांड्स मांगी। उनको ये कहा कि आफ्टर यू ज्वाइन द इंडियन यूनियन विल ग्रांट प्रिवी पर्सेस टू यू ऑल्सो। प्रिवी पर्सेस मतलब एक अमाउंट जो आपको एनुअली मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपनी शान शौकत जैसी है वैसी मेंटेन कर सकें। एंड वी विल बी टेकिंग ओवर योर लाइक जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, जो वही हम आपकी लेंगे, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आपके पास रहेगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, वो कोई भी कंसेशन देने को तैयार थे। तो हर तरह से, और उसके बाद फिर उन्होंने कई जगह पर फोर्स भी यूज़ करनी पड़ी थी। सो हर तरह से उन्होंने जो तरीका था वो अपनाया, और एकदम एक जैसे कहते हैं रियलिस्ट इन पॉलिटिक्स, वो रोल सरदार पटेल ने उस वक्त प्ले किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच ही इज़ कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरह का भी हम डिटेल में देखेंगे कि एक एक स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। सो जब इंटीग्रेशन के टाइम द स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच वाज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, फॉर 1 मार्क, दैट व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो इट वाज अ डॉक्यूमेंट दैट द स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू साइन while acceding to India, while agreeing to become a part of India। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिखाया है कि दिस was the instrument of accession that was signed by the ruler of जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप लोग ये पढ़ पा रहे हो तो ओके, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रूलर ने ये साइन किया था। ये यहाँ पे उनके सिग्नेचर हैं, ये उनका नाम लिखा हुआ है पूरा। और ये अगर आप लोग देखें तो ये माउंट बैटन के सिग्नेचर हैं, बिकॉज ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, एक डॉक्यूमेंट था विच वाज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। और फिर जो अलग से जो कंसेशंस और टर्म्स होते थे वो अलग से नेगोशिएट किए जाते थे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था। आस्क फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम। Okay, so what was the approach of the government while in the integration of a state? तो गवर्नमेंट का अप्रोच 3 कंसिडरेशंस थी, उसमें पे 3 चीज़ों पर बेस था। नंबर 1, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो इसमें कई जगहों पर ऐसा भी हुआ जब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा कि रूलर एक्सीड कर दे रहे हैं, पर रूलर कह रहे हैं कि दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, बट लोग नहीं तैयार हैं, लोग उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दे रहे हैं। तो कई जगह पे रेफरेंडम और प्लेबिसाइड भी करवाया गया था। ओके, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बताया है कि NWFP में रेफरेंडम हुआ था टू डिसाइड द विशेस ऑफ पीपल, विच वॉज बाइकॉटेड बाय द खुदाई खिदमतगार्स। तो इस तरह से यहाँ इंडिया में भी कई रियासतें ऐसी थी जहाँ पे रेफरेंडम करा के ये सर्टेन किया गया। और इसी में एक इशू जो कश्मीर का फंसा था वो अभी तक फंसा ही रह गया। अब तो खैर वो इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है कि वहाँ पे भी ये प्रॉमिस किया गया था कि दैट प्लेबिसाइड वुड बी कंडक्टेड, बट इट वाज नेवर कंडक्टेड। दैट्स व्हाई इट बिकेम अ डिस्प्यूटेबल थिंग। उसके बाद फिर गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट ने इवन कई रीजन्स को ऑटोनॉमी तक की बात की, और जैसे आप लोग सब जानते हैं कि इसी के चलते फॉर जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 वाज इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नाउ स्क्रैप्ड ऑफ। सो ऑटोनॉमी भी, कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। देखिए 3 चीज़ की डिमांड की गई थी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें उन्होंने डिमांड की थी आपकी, आप हमको डिफेंस दे दीजिए, आप हमको कम्युनिकेशन दे दीजिए, ओके, और आप हमको करेंसी दे दीजिए, नहीं फॉरेन रिलेशंस, हाँ फॉरेन अफेयर्स। ओके, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इसकी डिमांड थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन व्हेन द स्टेट्स वर साइनिंग दे वर सरेंडरिंग बेसिकली दीज 3 थिंग्स। ऑन द अदर थिंग्स देयर कैन बी कंसिडरेशंस, दे कैन बी गिवन कंट्रोल ओवर अदर थिंग्स इन देयर स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हर स्टेट से अलग अलग उस तरह से
टर्म्स जो है कई स्टेट से नेगोशिएट किए गए थे। एंड देन द थर्ड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन, ये करना था, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको किसी भी कीमत पर करना था। तो चाहे उनको आप कंसेशंस दे के करिए, चाहे उनको आप लालच दे के करिए, चाहे उनको आप डरा के करिए, तो गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि एनी हाउ वी हैव टू the shape of that India that we dreamt of. ओके तो इंडिया जैसा, अखंड भारत जैसा था वैसा होना चाहिए। भारत के 2 टुकड़े करके गए ब्रिटिश, ऐसा ना हो कि उसके 550 से भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएं, ये एम था। ओके तो बहुत कोशिश यही की गई कि इन सारी चीज़ों को मिला के, सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड इंडिया क्रिएट किया जाए। अब इसमें जो कुछ स्टेट्स के नाम आए थे जहाँ पे प्रॉब्लम थी, वहाँ एक एक स्टेट का देखते हैं। एक्चुअली इन योर सिलेबस ओनली हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर you have to study in detail. Okay, and in that also Kashmir is not a part of this chapter. Kashmir is going to be discussed in another chapter, that is regional aspiration. That is, I think, chapter 7 of your book. Okay, so here we will be discussing only Hyderabad and Manipur in detail, but since you should know what happened in brief, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो हो सकता है कि हैदराबाद और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ, शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले द स्टेट दैट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस वाज द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर। इट वाज स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर। अब ये स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर था कहाँ? ये यहाँ था। ये जो आप इस समय का जो केरला देख रहे हैं वो उस समय था ट्रैवनकोर कोचीन। ओके तो ये स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर यहाँ पर था। यहाँ के रूलर ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है 1946 इटसेल्फ। वो ये सोच रहे थे कि हम चूंकि वी हैव प्रॉक्सिमिटी टू सी, सो वी कैन हैव रिलेशंस विद अदर नेशंस थ्रू सी, हम सी से हमारा लिंक हो जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ जानना ज़रूरी है कि जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके रूलर्स जो थे, जो एक्चुअल रूलर्स थे, वो तो हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ जीने में बिजी रहते थे। सो दे वर ईदर ट्रैवलिंग अब्रॉड और दे वर हैविंग पार्टीज, और उनका सोशल लाइफ में बिजी हैं। जो स्टेट का मेन काम था वो दीवान देखा करते थे, दीवान जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये दीवान जो थे ये बड़े पावरफुल थे स्टेट में और इनकी बहुत चलती थी। तो यहाँ ट्रैवनकोर के जो दीवान थे वो थे सीपी अय्यर। ओके तो सीपी अय्यर ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया खुद को, लेकिन वहाँ पे फिर इस उनके डिसीजन का अपोजिशन शुरू हो गया और लोग जो कांग्रेसी थे और जो कम्युनिस्ट थे वो इसको अपोज करने लगे और फिर सीपी अय्यर की लाइफ पे एक अटेम्प्ट हुआ। ओके देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ विच ही वाज टेरिफाइड। उनको तो फिर डर लगा, उनको लगा कि बहुत ज़्यादा मैं लोगों के विशेस के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, एंड देन ही एक्सीडेड इन फेवर ऑफ इंडिया। ओके तो यहाँ से ट्रैवनकोर की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हुई थी। फिर दूसरा जो स्टेट था जो कि बहुत उसके बाद फिर ये राजपूताना में भी प्रॉब्लम थी। राजपूताना में यहाँ जोधपुर था। अब जोधपुर की जो बाउंड्री थी वो पाकिस्तान से लगती थी। तो यहाँ पे एक जो राजा थे वो थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने ये डिसाइड किया कि हम ये नेगोशिएट कर रहे थे दोनों ही गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। और पाकिस्तान चूंकि जोधपुर चाहता था, अगर जोधपुर आ जाता तो हो सकता है कि ये बहुत से राजस्थान की कई रियासतें ये पाकिस्तान के साथ चली जाती। तो इसलिए जिन्ना उनको कोई भी कंसेशन देने को तैयार किया थे, एंड इट इज सेड दैट ही हैड गिवन हनुमंत सिंह अ ब्लैंक पेपर विद हिज सिग्नेचर एंड ही आस्क्ड हिम टू राइट द टर्म्स, that you write whatever terms you want on this paper but accede to us। तो जब सरदार पटेल को ये पता लगा तो उन्होंने तुरंत हनुमंत सिंह को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि whatever concessions they are giving वो हम भी दे सकते हैं। ओके और फिर उन्होंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर किया और काफ़ी उनको समझाया, एंड देन दैट आफ्टर दैट हनुमंत सिंह जोधपुर एक्सीडेड टू इंडिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो था स्टेट ऑफ जूनागढ़, यहाँ प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा। तो जूनागढ़ में जो केस था वो ये था कि ये रूलर यहाँ के मुस्लिम थे और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी।
ओके, रूलर मुस्लिम थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। तो ये पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। ही एक्सीडेड टू पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान को एक्सीड कर दिए, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार पटेल ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, सरदार पटेल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट वी रिजेक्ट दिस एक्सेशन, हम इस एक्सेशन को स्वीकार नहीं करते, बिकॉज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन द स्टेट इज हिंदू एंड दे डोंट वांट टू एक्सीड टू पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हुए और वहाँ की जनता ने वहाँ के जो नवाब थे उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो ये जो नवाब थे ये कराची भाग गए, पूरी ट्रेजरी वेजरी सब लेकर, सारा खजाना पैसा लेकर ये कराची भाग गए। और यहाँ के जो दीवान थे वो थे शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो, अगर आप लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुना है तो ये बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी थे। ओके, तो शाहनवाज भुट्टो जो थे, फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप आइए और स्टेट को एक्सीड करिए। तो इस बीच में इंडियन फोर्सेस भी जूनागढ़ के आसपास पहुंच गई थी, तो वो भी थोड़ा सा दबाव बन गया था, थोड़ा प्रेशराइज हो गया था। और फिर जूनागढ़ में होता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मीन्स पब्लिक वोट, एंड दैट पब्लिक वोट ऑलमोस्ट 99% लोग जो थे उन्होंने इंडिया के फेवर में वोट किया। सो दैट इज़ हाउ जूनागढ़ वॉज एक्सीडेड टू इंडिया। फिर एक स्टेट आता है आपका यहाँ पे भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे करीब था वो भोपाल। तो भोपाल स्टेट में भी केस यही था, जो रूलर थे वो मुस्लिम थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे हिंदू की थी। भोपाल के जो नवाब थे, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माउंट बैटन। माउंट बैटन को वो लोग डिकी कह के बुलाते थे, निक नेम उनका डिकी था। तो ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माउंट बैटन। तो उन्होंने माउंट बैटन को एक लेटर लिख के कहा कि आई वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ओके, और मैं इंडिया के फेवर में नहीं जाना चाहता हूँ। तो माउंट बैटन ने उनको काफ़ी समझाया कि आपके लिए अच्छा क्या होगा, आप यहाँ पे बीच में पड़ते हैं, आप कैसे इंडिपेंडेंट होने की सोच सकते हैं या फिर कैसे पाकिस्तान जाने की सोच सकते हैं, आपको रास्ता कहाँ से मिलेगा। ओके, तो उन्होंने उनको समझाया कि व्हाट इज़ इन योर इंटरेस्ट, एंड फिर उन्होंने जो नवाब ऑफ भोपाल थे, ही एक्सीडेड टू इंडिया। ओके, तो मेन ये, अब इसमें जो प्रॉब्लम मेन फंसी थी, वो जो इशू फंसा था बाई 15 अगस्त 1947, ये सारा कुछ सब रियासतें जो थी इन्होंने किसी तरह इंडिया के फेवर में साइन किया और ये हो गया था, एक्सेप्ट हैदराबाद एंड कश्मीर। ओके, और मणिपुर का एक केस है जो कि वो लेकिन बहुत उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, और आप इसको कहीं और पाएंगे भी नहीं इतने इशूज़ में, एक्सेप्ट योर बुक। तो ये हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये जो दो स्टेट्स थे बहुत बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, और इनका जो इशू था वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था। सो दैट वी हैव टू सी इन डिटेल नाउ दैट हाउ Hyderabad was integrated into the Indian Union. Jammu Kashmir, I told you, we will be discussing it in the chapter regional aspirations, and we will discuss Manipur also. Okay, so today I told you about the integration of Travancore, Junagadh, Bhopal and Jodhpur. Okay, so it may not be very important from the point of view of NCERT, but you should remember that there is a topic that is added up into your syllabus, that is Sardar Patel, role of Sardar Patel in the integration of princely state. So if a 6 marker come, then you will be needing this background, that not only in the integration of Hyderabad, Jammu Kashmir or Manipur, in the integration of all these states, in जूनागढ़ का इंटीग्रेशन तो वो सरदार पटेल की प्रेस्टीज की बात हो गई थी, बिकॉज इट वॉज हिज होम स्टेट। ओके, तो ये इन सारी जगहों के इंटीग्रेशन सरदार पटेल के बिना नहीं हो सकता था। ही वॉज वन मैन आर्मी, मतलब कि वो इस एरिया के लिए वो वन मैन आर्मी थी। उन्होंने मिलकर बिल्कुल जान लगा दी थी अपनी इस काम के लिए कि ये सारे स्टेट्स को, हमें इंडिया को वैसा ही रूप देना है जैसा कि हमने सोच रखा था
पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, एक बहुत बड़ी टेरिटरी ऑलरेडी अलग हो चुकी है, लेकिन अब जो बचा है हमारे पास हम उसको टूटने नहीं देंगे, ये उनका बिगेस्ट रिजॉल्व था। सो आई थिंक दिस वीडियो हैज़ बिकम क्वाइट लॉन्ग, so I will be discussing, I'll be making another video to explain the integration of Hyderabad and Manipur. Okay, so keep watching and keep giving me your feedback and comments. Thank you so much. Bye bye.